it is refresh. Good morning. Okay, ready now. Good morning. Good morning, everyone. So everybody do join. Slightly class got delayed due to some operational problem. So do scan this Telegram ID. Scan your Telegram ID to get into the our group, Vedang Civil Service group for better reach. ठीक है. So so this is the Adarsh batch. We are available on YouTube, and this is our class timing 8, 9, 5 and 7 p.m. ठीक है. And there's a slight change in time. As usual, I will be taking on Tuesday, Thursday and Saturday, and 9 o'clock, and at the same time Monday, Wednesday and Friday will be taken by Sujata ma'am at sharp 9. Then ethics at 5 to 6:30 p.m. Arpita ma'am will take the classes, and 7 to 8 p.m. Will be taken by the Chandan sir and KDS sir, respective geography and history classes. Let me go to the file. So this is a civil services offer price. So Biswas batch, it's around 4,500. Follow, you will get a quality content of pre, 4,500. You will be writing the pre. I mean, you will get all the content within this 4,500 range. And if you want, I mean, obviously, bina mains re, this is worthless, right? So যদি mains plus pre never hochi, then this is good. 1.5 years by 10,000 padibo, and that is very reasonable price. Okay, so I please go for this one if possible. Please go for this one. I mean, this is very reasonable. 10,000 is I mean, it's not too heavy for the pocket, right? And anyways, mains batch, those are writing mains this year, and we have already started the batch. This is around 7.5k. So do join this batch so that you can enhance your mains answer writing. And optional batches we are continuing. So optional batches is for one year validity. It is 4k, right? 4k. Good morning, Priyanka. Sorry, it got late. So 4k. Myself will be taking optional of around I mean PSIR. I will be taking PSIR optional. So already the class has been started. So please join. Do join the batch. Okay. So obviously today we got a slight delay because of the operational issues. Anyways, we have fixed it, right? So today we'll learn some new concept regarding to the market overlap, है ना? So टिके धैर्य दे सुनिबो. It's because it related to the current affairs. It related to the CA. CA part रे कौन अछि? Economy अछि, ना? टिके IR part अछि, and global instability अछि. Okay. So I'll be discussing everything today within this short time. क्या है परिवो? I will tell you. ठीक अछि. Okay. So before that, I would like to tell you something about, I mean, we are a globally, dependent economy, right? जहाँ पे global रे जहाँ भी होची उथल पुथल हबो, it will directly affect our economy. ठीक अछि. So we are not North Korea or any other communism based economy, but जेहेतु we are a mix of capitalism and nationalized policy ଆମେ ରଖୁଛୁ. So whatever changes will be happening in the world, that will directly affect our economy. ठीक अछि. ଯଦି ତେଲ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି ବାହାରେ, barrel rate ଯଦି କମୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କମିବ.
एंड जदि बैरल रेट बढ़ुची इंडिया रे आई मीन सेटा भी इंडिया रे बढ़िबो तो एनी volatility happening in outside of India that will directly affect our Indian market and moreover India market है consumption based okay consumption based market so किछि भी उथल पुथल ले because of consumption हमर मार्केट रे माने we don't go for this माने एते भी instability हुएनी because of consumption हम एमिति एते consumption नहीं जाय जाय कि market stability रहे हमर ठीक अछि तो एटा कोन थिला rupee touches new low currency crosses 90 level mark against US dollar why it is very important है ना माने 90 टच हेतला मोर मन अछि लास्ट 1 ईयर रे it was around 83 है ना 83 जगह थिला so right now it has touched to 90 है ना so $1 equal to 90 rupees है ना what does it signify right so I hope I mean it's just a start so listen what I am saying ठीक अछि ठीक है context कोन अछि if you have glanced at financial headlines recently you would have certainly seen that the Indian rupee had touched a new record low of around 90.05 against the US dollar but bounced back slightly matters ना I mean हमरो कोन अछि एबे US डॉलर केते अछि 90.05 एडा एक्चुअली आगुरु थिला 15 वर्ष तळके साइकोलॉजिकल मार्क 80 थिला एबे recently psychological mark anything above 90 is like I mean we are in serious trouble actually not एटा कहबा कथा कि we are in serious our condition is serious but not that okay काहे देखो while you might feel that currency slides often impact only hedge funds and traders and distant trading rooms देखो देख जेतल 90 हबो या 95 हबो 100 हबो है ना तमरो it will impact the economy है ना इन्वेस्टर्स है ना तापर कोन गोटे थाई गोटे सेलिंग भी होए है ना ए सब जिंस अछि आगु कहिबेला तो इट विल इंपैक्ट ओवरऑल तो मो मार्केट रे के जे इन्वेस्ट करछंती तो मार्केट रे जे इन्वेस्टमेंट करी जे काडुछंती तांको भी इफेक्ट करियो समस्त को इफेक्ट करियो इफ योर करेंसी क्रैशेस है ना ए गोटे जिंस तापर हाउ रुपी वैल्यू इज कैलकुलेटेड अगेंस्ट यूएस डॉलर है ना इंडिया फॉलोज ए मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट है ना अंडर ए मैनेज फ्लोट सिस्टम गोटे अछि फिक्स सिस्टम अछि हला फिक्स सिस्टम सपोज गवर्नमेंट फिक्स कला $1 इक्वल टू 50 रुपीस ठीक अछि $1 हला 50 रुपीस मतलब बाहर जहां भी वॉलेटिलिटी हेले भी हम डॉलर टा सब फिक्स रही थबो ठीक अछि तो आ भीतर कोन कि इन्वेस्टर्स वोंट बी अट्रैक्टेड है ना इन्वेस्टर्स वोंट बी अट्रैक्टेड बुझि पछ जदी गोटे आ गोटे कथा जदी आमे कोन यूज करछ वी इंडिया फॉलोस ए मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट है ना मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज अंडर ए मैनेज फ्लोट सिस्टम राइट इंडिया कोन कि मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज मार्केट रे जहां भी उथल पुथल हबो सपोज $1 इला 50 हे गेले जदी मार्केट क्रैश करछि देन हमर डॉलर वैल्यू हिज 55 60 65 इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट ठीक अछि मार्केट केमिति अट्रैक्ट माने अट्रैक्ट करछि माने मार्केट हिसाब रे हमर डॉलर वैल्यू चेंज होतबो रुपी क्रैश भी करि पारे रुपी अप्रिशिएट भी हे पारे द मार्केट डिसाइड्स द रुपी डॉलर रेट the RBI intervenes if there is an excess volatility है ना आ भीतर RBI भी इंटरवेन करे बेले बेले जेतोले हमर मार्केट माने रुपी वैल्यू डेप्रिशिएट है RBI आल्सो इंटरवेन काहे रुपी को अप्रिशिएट करे पे भी RBI इंटरवेन्स करे है ना एटा हम आगु को पढेबी just try to understand what I'm saying तबरे the value of rupee versus USD is determined mainly by two forces है ना the how rupees value is calculated against US dollar है ना demand for dollar demand for rupees है ना exchange rate is the price of one used in terms of INR माने 1 USD equal to how much of dollar है ना how much of rupees ना एडा है so the rate moves according to supply and demand देखो गोटे हला कि supply आउ demand है ना मार्केट रे कोन supply and demand जाय जदी डॉलर रा डिमांड बढ़िबो जदी डॉलर रा डिमांड बढ़िबो हला डिमांड बढ़िबो कथा कहूची देन तार वैल्यू डॉलर वैल्यू बढ़िबो ओके देन हमर जो रुपी अछि तार वैल्यू घटिबो प्लीज अंडरस्टैंड दिस है ना इफ देयर इज अ देखो गोटे जिंस हम मन रखिबो आइदर डॉलर नले रुपी हैला आइदर डॉलर नले रुपी आइदर डॉलर स्ट्रांग होबो नले रुपी स्ट्रांग होबो जदी डॉलर स्ट्रांग होबो ता वैल्यू बढ़िबो रुपी क्रैश होबो जदी डॉलर स्ट्रांग होबो ता वैल्यू बढ़िबो रुपी क्रैश होबो मोर जिंस कोच है ना इफ मोर पीपल वांट डॉलर्स यूएस रुपी वीकेंड्स इफ मोर पीपल वांट रुपीस आईएनआर स्ट्रेंथन्स देखो
सपोज $1 है 40 $1 80 रुपीस ओके ठीक अच्छे आम डॉलर डिमांड बढ़ुଛି केमती कहीं 90 रुपीस ओके $1 इक्वल टू 90 रुपीस ता माने सपोज आफ्टर सम टाइम $1 बिकम 95 तुम बुझी पारछ गोट गेट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल सपोज माने एटा एमि देखो इफ $1 पाई माने देखो गोटे यूएस मैन अछि आई मीन ए पर्सन फ्रॉम वन यूएस मैन is fighting against 80 Indian persons ठीक अछि ता पावरफुल के डॉलर हेगला one US man is fighting against 90 Indian persons माने के पावरफुल है डॉलर हेगला if one US person fighting against 95 persons माने डॉलर माने के पावरफुल है डॉलर पावरफुल है माने हमर करेंसी क्रैश करछि बिकॉज़ आगरो गोटे डॉलर पे 80 रुपीस दरकार थिला एबे गोटे रुपीस पे 95 रुपीस दरकार पड़छि माने हमर करेंसी वीक होछि बुझि पाछ हमर करेंसी वीक होछि that means 80 people were required against one US man. Now we are required 95 people. That means US currency is getting boosted. If dollar value increases, then it's good for exports. Okay. हाँ आगु कोई भी ना आगु को अच्छी I will do some calculations तुमको एट बुझे देबे सब जिंस ठीक अछि राइट सो एडा कोन होछि जदी रुपी एडी कोन करि एडा हला रुपी डेप्रिशिएट करे एडी रुपी डेप्रिशिएट होय ठीक अछि एडी रुपी डेप्रिशिएट करछि माने आम एडी कहि परिबा हमर जो एक्सपोर्ट हबो बढ़ी जिवो एक्सपोर्ट बढ़ी जिवो राइट तुम जब कहतला देखो डॉलर वैल्यू इंक्रीज माने कोन देखो एक्सपोर्ट केमिति बढ़ी गोटे कथा कहछि देखो देखो आउट होता सपोज यूएस रा कंपनी अछि हला यूएस रा कंपनी अछि दे वांट 1 kg of iron ठीक अछि 1 kg of iron ठीक है यूएस कंपनी दे वांट 1 kg of iron ते देखु छी 50 kg रे 50 रुपीस रे 1 kg मिल जाउ हला 1 kg माने $1 अछि 50 रुपीस ठीक अछि $1 अछि 50 रुपीस ता भीतर ताको 1 kg of iron मिल जाउ ओके 1 kg of iron मिल जाउ ता पर सपोज डॉलर वैल्यू बढ़ी गला एंड रुपी डेप्रिशिएट माने सपोज रुपी हे गला 100 माने $1 इक्वल टू 100 रुपीस $1 इक्वल टू 100 रुपीस ता माने एठी ताकू 2 kg आयरन मिल जिवो 2 kg आयरन मिल जिवो बुझि परछो हां ठीक अछि तो यू सी दिस एटी $1 थिला 1 kg मिलथला एबे हम कोनला रुपी माने डॉलर स्ट्रेंथन हेगला रुपी रे वैल्यू कमी गला बुझि परछो ता माने एटी कोन हबो एबे ताकू 2 kg आयरन मिलियो माने हमर एक्सपोर्ट बढ़ी गला वी आर ऑब्वियसली से माने डॉलर पठेबे ना से जेतल जे डॉलर पठेबे डॉलर एक्सचेंज जेतल से माने यूएस वाला इंडिया को डॉलर पठेबे हला डॉलर पठेबे जेतल कन्वर्ट हो जे 100 रुपीस से कन्वर्ट हो जे माने एटू केबे 2 kg ऑफ आयरन जीवो तले एक्सपोर्ट बढ़ी गला ना तले कोन यूएस वाला इंडिया मार्केट को चूज करिवे यूएस विल चूज इंडियास मार्केट राइट काहेकि बिकॉज ताको बेसी मटेरियल मिलुची एडा आगुरु चाइना करूथला काउन में डिवैल्यूएशन करथला काहेकि माने आको कोनते डिवैल्यूएशन कोनते माने चाइना जानी सुनी कि तार जो रेमनी भी अछि ना ताको कमे से वैल्यू टा कमे दो राइट त वैल्यू से कमे दो ताकि मोर एंड मोर गुड्स से एक्सपोर्ट कर परियो बुझि पर तो जदी डॉलर इंक्रीज होची एंड रुपी डेप्रिशिएट होची एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़िबो एंड वाइस वर्सा बुझि पर आइयो आ एठी कोन हबो आप आउ की खुशी हबो जो रेमिटेंसेस वाला जे सपोज डॉलर पठौ चंदी आ जतले रुपी रे कन्वर्ट हबो ना तो रेमिटेंसेस रे बहुत पैसा आसी जिवो इंडिया को बहुत पैसा मिलिबो माने जे रिसीव करिवो ताको बहुत पैसा मिलिबो ओके से जिंसोटा ओके तो इट कोन अछि हाउ रुपी वैल्यू इज कैलकुलेटेड अगेंस्ट यूएस डॉलर आरबीआई मैनेज फ्लोट इंटरवेंशंस है ना माने हमें वी फॉलो फ्लोटिंग रेट है ना फ्लोटिंग रेट आज जदि 80 थबो काली 80.3 थबो या 80.4 थबो सपोज आमे जदि फिक्स कर देथांदो 80 कर देथांदो इन्वेस्टमेंट आसी न थांता हमर इन्वेस्टमेंट आसी न थांता तांको तो फिक्स अछि जदि 80.3 कर दोचो तर हमर एक्सपोर्ट भी बढ़िबो एंड कोन हबो हमर ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ता बढ़िबो बुझि पाछो तो हमर कोन हबो एक्सपोर्ट सप्लाई जदि बढ़ि जिवो देन विल गेट मोर मनी राइट और एक्सपोर्ट विल बी मोर कॉम्पिटिटिव से जिंसोटा जदि किंतु 80 रहइबो ताले एक्सपोर्ट तो कॉम्पिटिटिव होबोनी काहे इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट राइट
तापरे if rupee is rising too fast, if rupee is rising too fast, आउट हैला RBI sells dollars. देखो जदी if rupee is rupee जदी appreciate करछ, appreciate बुझी पाछ. देखो गोटे जिंस हला सपोज $1 अच्छी 80 रुपीज अच्छे है 85 होची 90 होची है ता माने कोन हमर इंडिया करेंसी क्रैश करची एटी कोन माने डॉलर डिमांड बढ़ुची राइट जदि डॉलर डिमांड बढ़ुची ना हमें कोन करबा से आरबीआई कोन करे जानचो आरबीआई दे जस्ट स्टेप इन एंड दे विल सप्लाई डॉलर इन द मार्केट ते मार्केट रे पूरा डॉलर माने सेल करबा माने दे विल सेल द डॉलर्स इन द मार्केट बुझी पाछो डॉलर डिमांड बढ़ुची सपोज डिमांड अछि $5 डिमांड अछि मार्केट रे आरबीआई कोन करे $10 छाड़ दो आरबीआई $10 छाड़ दो आ माने कोन हो जानचो देन डॉलर वैल्यू विल माने डॉलर वैल्यू विल डेप्रिशिएट माने $1 जदि 80 थबो तो $1 बिकम 78 या 77 माने 80 रुपी स्ट्रांग होउछ बुझी पाछो तो गोटे डॉलर जदि माने सपोज यू आर डिमांडिंग अ डॉलर एंड आरबीआई कोन करियो से जो डॉलर जो डिमांड को ना पूरा माने पूरा मार्केट री माने दे विल सेल द डॉलर्स राइट दे विल सेल द डॉलर्स ता माने कोन रुपी को से माने बंचाबो चेष्टा करछंती राइट दे आर ट्राइंग टू रिकवर द रुपी ए जिंसटा से कोच वाइस वर्दा राइट ओके if rupee is rising too fast RBI buys the dollar है ना सेम जिंस it prevents exporter from getting hurt आगु कोई है ना if RBI sells dollar it increases dollar supply slows rupee depreciation माने गोटे RBI करिवो सेल करिवो तापर कोन करे RBI कोन करिवो रुपी को माने देखो आ गोटे कथा जदि रुपी रो वैल्यू 80 होची माने $1 रो वैल्यू जदि 80 होची 78 होची 77 होची ना ताले हमर एक्सपोर्टर हर्ट ही जिवे सेति पे कोन करे RBI will buy dollar then RBI will start buying dollar जदि RBI will start buying dollar ना कोन हो जतो तापरे रुपी रो वैल्यू धीरे धीरे कमिबो या 80 रो 80.5 हे जिवो 80.2 हे जिवो बुझि पार एटा सब कोन छोट छोट कांसेप्ट उडा जोटा तुम जानिया कथा ठीक अछि जदि माने जदि करेंसी क्रैश होची आरबीआई रो वैल्यू बढ़ुची तो आरबीआई कोन करिवो माने सपोज डॉलर रे वैल्यू बढ़ुची आरबीआई कोन करिवो आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग द डॉलर इन द इंटरनेशनल मार्केट जदि तमे इफ यू स्टार्ट सेलिंग द डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट ता माने कोन करियो डॉलर रो सप्लाई बढ़ाई दल ता डॉलर रे वैल्यू कमी जिवो गोटे मंडी रे 100 केजी आलू दरकार तमे कोन कलो 200 केजी पुरे दल से आलू रे वैल्यू कमी जिवो बुझी पाछो सेमिति होय सेटा भी सेम कांसेप्ट रे ठीक अछि तापरे factors leading to fall in rupee ebe actually why what are the factors I mean why rupee is in free fall है ना agents sort of uncertainty surrounding India US trade है ना markets had expected progress but news broke that the discussions were stalling ended up reducing optimism about stronger export flows है ना that uncertainty makes investors nervous because if export don't pick up fewer dollars will come into India देखो actually कोन US देखो US India trade deal ता हला प्रॉब्लम हला काहे कि हमें we used to export more माने export more to US right जदि हमें export जदि हमें export करछ ना US को जदि export करछ ना तो डॉलर इंडिया को बहुत आसे राइट तो एबे कोन हेछि 50% टैरिफ लागी छि तो कोन डॉलर तो बहुत कम आसीबो ना इंडिया को we can't even sell our products in USA काहे कि टैरिफ लगी तो आई मीन हमर इंडिया रो जो प्रोडक्ट हैला ना इट विल कम डाउन राइट ए जिंसटा सेते पई एंड व्हेन इट्स लाइकली इंटरफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी लुक्स वीकर द रुपी फील्स लाइटर ऑन सपोर्ट देखो सीधी सी बात है डॉलर जदी वीक हबो रुपी बढ़िबो आ डॉलर जदी स्ट्रेंथ हबो रुपी कमिबो एडाला सिकुछ तापर factors leading to fall in rupee out of US Federal Reserve's higher for longer policy US Federal Reserve sent signal that it might delay interest rate cuts देखो एक्चुअली कोन होछ जानचो प्रॉब्लम हला जो यूएस जो फेडरल बैंक अछि ना से माने सेठी इंटरेस्ट रेट हायर कर देछन बुझी पाछो से माने 2 to 3% करथबे से माने आकु कट करिबेनी काहे कि जदी सेठी इंटरेस्ट रेट जदी हायर अछि ना कोन हबो
आमर जो जहाँ भी लोक इंडिया रे इन्वेस्ट करथबे ना सेही पैसा को से माने यूएसए को नै जिवे काहे कि सेही इंटरेस्ट रेट हाई अछि बुझि पारछो सेठी इंटरेस्ट रेट हाई अछि बोली दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट इंडियन मनी इन यूएस मार्केट काहे कि बेसिस पैसा सेठी मिलिबो तो फेडरल बैंक कोन करछे सेबे पैसा माने इंटरेस्ट रेट जमा काटुन राइट इंटरेस्ट रेट जमा काटुनी सो हमरो माने डॉलर रा आउटफ्लो हे जाउछ इंडिया रो बाहर को जाउछ ताकि सेठी बेसी पैसा कमेबे सिंपल आंसर माने जो बैंक बेसी इंटरेस्ट रेट दबो तमे सेठी पैसा रखिबो माने यूएसए रो फेडरल बैंक बेसी इंटरेस्ट रेट दोउची ताले सेठी बेसी पैसा मिलिबो तो व्हाट पीपल डज दैट दे टेक द मनी फ्रॉम इंडिया टू यूएसए है ना द यूएस फेडरल रिजर्व इंडिकेटेड दैट इट मे कीप इंटरेस्ट रेट हाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड this means borrowing money in the US stays costly savings investing there becomes more rewarding बुझि पार देखो एठी कोन होची जदी इंटरेस्ट माने इंटरेस्ट रेट बढ़ुछ तो लोन टे कॉस्टली हबो हला किंतु यूएस रे किंतु जो तमर जो सेविंग्स बैंक रे जो पैसा अछि तार इंटरेस्ट बढ़िबो बुझि पार ता माने यू विल गेट मोर इंटरेस्ट ए जिंसा कोच माने सेविंग्स इन्वेस्टमेंट देयर बिकम्स मोर रिवार्डिंग माने तमे बेसी पैसा कोड पाबे यूएस रे पाबे सेविंग्स रे से जिंसा से कोच high interest rates in the US makes US bonds, treasury bills and money market. बुझि पारछ so we will start investing in US bonds, treasury bills and money market कि सेठी interest rate बेसी आउछि so there is no point of keeping money in India. We'll start investing there only. तापर कोन अछि तापर instruments more profitable compared to other countries that is investors shift money into US ए जिंसटा मु कहू investors shift money into US काहे कि सेठी interest rate बेसी अछि तापर assets कोन more demand for dollars globally puts pressure on emerging market currencies such as the rupee देखो obviously dollar is going from India to USA तो obviously rupee depreciate ही करिवो काहे कि dollar demand बढ़छि ताले rupee कोन हो कमी जिवो माने 85 तो 90 ही जिवो 90 95 हे जिवो तो जे जहा जते को emerging markets अछि हेगला बुझ पे डेवलपिंग इकोनॉमिक्स हेला तांको करेंसी को बहुत कष्ट होवे when dollars get appreciated that dynamic alone has the potential to weaken the rupee even without other problems ए जिंसटा कुछ ना factors leading to fall in rupee out है लगे outflow of foreign portfolio investments एडी कोन कुछ foreign portfolio investment देखो एटा गोटे डेटा अच्छेला FPI pulled out about $16.5 billion from Indian equity market this year माने this year $16.5 billion बाहर को पड़े छी माने foreign portfolio FPI टा केते की less than 10% of equity right I mean एत्तिकी $16.5 billion has been taken away from Indian market yes good morning sir obviously today late he gala I mean some operational issues but be there and I'm trying for a different concept बुझि परछो so be there right देखो एथर कोन एथर रुपी रे फॉल होबर गोटे रीजन कोन आछो है ना why rupee is falling है ना why rupee is falling एट गोटे जिंस होय FPI is one of the main culprit काहे कि FPI जो इंडियन मार्केट रे जो इन्वेस्ट करतले माने के FPI कोन the okay it's okay no problem and that's also useful na right FPI is also useful okay देखो FPI जो अछि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट जोडा अछि हां ठीक अछि ओके हमर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अछि गोटे अछि FDI अछि आ गोटे FPI अछि हां आई एम फाइन ठीक अछि I hope it टिके छोट छोट कांसेप्ट अछि you should understand this है ना एटी देखो एटी कोन लिखाइ छै FPI pulled out about $16.5 billion from Indian equity markets this year that's why rupee is falling माने fall of rupee काहे कि rupee $1 80 अछि आज 90 होबार रीजन कोन अछि FPI वाला कोन छै तांको पैसा ओडा से बाहर को नै गले बुझि पाछो काई एडा होछि सेडा भी मु कहूछि देखो सपोज गोटे इन्वेस्टर अछि से गोटे इन्वेस्टर अछि हला से आसिला 10 लाख डॉलर इन्वेस्ट कला इंडिया रे ठीक अछि 10 लाख डॉलर ठीक अछि एंड डॉलर रा वैल्यू केता अछि 100 रुपीस सपोज हाइपोथेटिकल 100 रुपीस वैल्यू अछि 10 लाख रा इन्वेस्टमेंट कला डॉलर रा वैल्यू 100 रुपीस अछि ठीक अछि तो एटा केते होछि 10 लाख into 100 केते होछि 1000 लाख केते होछि 10 करोड़ रे इन्वेस्टमेंट करछि इंडिया रे 10 करोड़ रे इन्वेस्टमेंट करछि केबे when dollar is 100 rupees बुझे पाछ
10 crore रो इन्वेस्टमेंट करची व्हेन डॉलर इज 100 रुपीस सपोज इंडिया रो जो स्टॉक मार्केट अछि इंडिया रो जो स्टॉक मार्केट अछि ना सी ताको 10% रिटर्न्स देला 10% रिटर्न्स देला माने केते देला 10 into 1.1 लाइक माने 11 करोड़ हेगलान तार माने तार मार्केट तार जो पोर्टफोलियो अछि 11 करोड़ हेगला माने से ऑलरेडी 1 करोड़ रो प्रॉफिट पाउची राइट से 1 करोड़ रो प्रॉफिट पाउची बुझी पाछ सपोज सपोज $1 है ना एबे हमर करेंसी क्रैश हेगला सपोज $1 इक्वल टू 200 $1 इक्वल टू 200 नाउ कोन हो ए जो 11 करोड़ टा ए जो 11 करोड़ को तुम डॉलर रे कन्वर्ट करो हां 11 करोड़ रिटर्न हैला माने 1 करोड़ प्रॉफिट हैला ना एटा मु कहू 1 करोड़ प्रॉफिट हैला तुम एबे देखो ओके ओके राइट सपोज एबे एटा इनिशियली थिला 100 $1 इक्वल 100 रुपीस एबे हेगला $1 इक्वल 200 माने मार्केट क्रैश करछ माने आवर करेंसी इज क्रैशिंग हैला ता माने हला आवर करेंसी तो एफपीआई वाला कोन करिवे से टाइम रे व्हाट एफपीआई वाला विल डू कोन करिवे जो तुम भावना 11 करोड़ को हमें डॉलर रे कन्वर्ट करिबा केते होछ 11 करोड़ एटा केते 5.5 राइट 5.5 लाख हाँ 5.5 लाख डॉलर ही जाउछ राइट बुझी पार एटा मु केम कॉले बुझी पार तो देखो जेतोर से इन्वेस्टमेंट आनतला 100 रुपीस रो माने 1 जेतोर से 10 लाख डॉलर आनतला सेठी कोन हला सेतल थिला 1 लाख $1 इक्वल 100 रुपीस थिला $1 100 रुपीस थिला एफपीआई वाला कथा कहूची तापर सेटा मु कैलकुलेट 10 लाख into 100 केता 1000 लाख हेगला ता माने 10 करोड़ अछि इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट इज 10 करोड़ आमे देखिलु स्टॉक मार्केट रे तार 10% प्रॉफिट होची माने 10 into 1.1 माने 1 करोड़ प्रॉफिट माने 11 करोड़ ला तार टोटल सेविंग्स हला 11 करोड़ बुझी पाछो माने सेविंग्स माने कोन टोटल तार पोर्टफोलियो माने से 1 करोड़ प्रॉफिट पाइला से देखु जे मार्केट फोन क्रैश हेगला कोन सपोज $200 हेगला मु तक से 11 करोड़ को मु डॉलर रे कन्वर्ट करबी केते होची 0.55 करोड़ डॉलर राइट इट इज इक्वल टू 5.5 लाख करोड़ बुझी पाछो तार थिला केते से इन्वेस्ट केते करथला 10 लाख डॉलर करथला तार क्रैश हेगरी 5.5 लाख करोड़ हला से कोन कहबो से तार पैसा नेकी पळेबा आ कोन आई होप इट सेटल द डिस्कशन माने बुझी पाछो सेते पई सी तार पैसा नेकी उडी पळे सेते पई एमिति इन्वेस्टर्स ना बहुत अछंती एंड एडा कोन गोटे जण एडा मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स एम अछंती भाबलो केते पैसा पळेचे अंचो इति पैसा पळेचे एमिति हे के 16.5 बिलियन डॉलर हमरो इंडियन मार्केट रो वाइप आउट हे जाय एंड दिस इज ह्यूज एक्चुअली दिस इज नॉट माने हमें इमर्जिंग मार्केट सकासे प्रॉब्लम खाउचे एमिति प्रॉब्लम फेस करूछ बुझी परछो तो जदी तुम भाबिल तुम निजे भाबिला विल यू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान नाइजेरिया यार करेंसी रे औकाती नाही हाँ सो मार्केट क्रैश ले ही विल रिटर्न टू हिज कंट्री माने से त पैसाटा नै जिवो हाँ 1 मिनट ओके सो व्हेन मार्केट विल क्रैश ना कोन हो तो तुम पैसा नहीं कि पळे जे एग्जांपल टा देल तो आमे वी वांट इवन आमे केबे चाहिमुन ना आमे पाकिस्तान इन्वेस्ट करियो सेठी तार करेंसी डेप्रिशिएट करे बांग्लादेश हेगला ता करेंसी सबल डेप्रिशिएट करे तमे इराक हेगला तांको करेंसी रे औकाती नाही इट विल डेप्रिशिएट एवरी टाइम बुझी परछ तो आउट है लाख factor leading to fall in another factor higher than the expected goods trade deficit in October mone achi amara October re investors always looking forward to invest in stable economy yes stable economy India bi oda stable economy to na ki India ro kichi problem achi एटा गोटे अनटोल्ड इंसिडेंट काई जे एटा एक्चुअल स्ट्रेटजी बिकॉज ऑफ टैरिफ बुझी पाछ देखो टैरिफ केसे केबे पकेतला से सितंबर रे पकेतला टैरिफ राइट टैरिफ रे इफेक्ट केबे आसला टैरिफ रे इफेक्ट स्टार्टेड इन अक्टोबर राइट अक्टोबर मास इफेक्ट स्टार्ट हेगला माने हायर देन एक्सपेक्टेड गुड्स ट्रेड डेफिसिट इन अक्टोबर व्हिच सर्ज टू अ रिकॉर्ड ऑफ 42 बिलियन एज एक्सपोर्ट प्लंज टू
12%। बुझी पाछ देखो एक्चुअली देखो तुम जो अक्टोबर रे सपोज आम अक्टोबर 2024 रे केते करछु $100 एक्सपोर्ट करथलु अक्टोबर 2024 रे हम $100 एक्सपोर्ट करथलु सेम अक्टोबर 2025 रे आम एक्सपोर्ट केते करिवो $88 बिलियन काहे कि एटी कोन ला 12% क्रैश हेगला माने 12% हमर कमी गला बिकॉज ऑफ टैरिफ बुझी पाछो तार एक्चुअल वैल्यू होला 42 बिलियन बुझी पार 42 बिलियन इज द वैल्यू त माने आमे अराउंड सेतोल कतल करछलु 70 to 80 बिलियन डॉलर आमे इन्वेस्ट माने पाउथलु माने वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट देम किंतु एबे केते अछि 42 बिलियन डॉलर बुझी पाछो इन द बैकड्रॉप ऑफ टैरिफ देखो माने तुम भाबुछ 12% हमर डिप हे जाय छै एक्सपोर्ट रे 12% डिप हे जाय छै काहे कि टैरिफ सकासे तो जदि 12% ता माने पाखरे ता माने कोन आम पाखरे डॉलर आसुनी वी आर नॉट गेटिंग डॉलर that means we are not getting dollar जदि यूएसए imposing tariff ना we won't get dollar बुझी पारछो तार भी कथा आगु बुझे केमति costlier gold purchases driving imports to a record of 76 billion also wait देखो 76 billion लागे टोटल एडा ला टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट थिला हला देखो एक्चुअली कोन हेछि एडा ला इंपोर्ट सॉरी टोटल इंपोर्ट ला देखो अक्टोबर कोन हेछि अक्टोबर कोन हेछि हमर जो इंपोर्ट अछि ना $76 बिलियन इंपोर्ट अछि हला आ भीतर दिवाली टाइम रे गोल्ड रे जो इंपोर्ट अछि अराउंड $15 बिलियन हला गोल्ड रे इंपोर्ट हला $15 बिलियन केबे अक्टोबर 2025 ठीक अछि किंतु 2025 रे गोल्ड रे इंपोर्ट केते ला $4 बिलियन बुझी पारछो माने वी आर डिमांडिंग मोर डॉलर एटा बुझी पारछो वी आर डिमांडिंग मोर डॉलर जदि हमें डॉलर डिमांड करिवो ना आरबीआई को करिवो से जानि सुनि के माने माने कोन रेट बढ़ेबो 85 अछि 86 काहे आरबीआई भी चाहिबो ना तापर डॉलर रहू काहे ताको आउरी जिंस सब किनिवार अछि तो ताको 86 कर दबो 87 कर दबो या को कोन मार्केट वोलेटिलिटी तुम भाबलो अक्टोबर मासे दिवाली टाइम रे हम $15 बिलियन रे गोल्ड किनिछु 2009 या 8 रे मनमोहन सिंह थरे कहितले कोन आछो I think थोड़ा पार्लियामेंट से जिनसटा कहते you I mean people of India should I mean stop buying gold कहीं बहुत सारा हमर करेंसी माने डॉलर उडा बाहर पळौछि because we used to import gold right we used to import gold that's why हमर करेंसी तळगु पळौछि हला बुझी पारछो तो आ भितरे $15 बिलियन गोल्ड आमे अक्टोबर 2024 $4 बिलियन गोल्ड परचेस करतो माने भाबछ $11 बिलियन एंड टोटल इंपोर्ट हला $76 बिलियन $76 बिलियन इंपोर्ट एति के एक्चुअली अक्टोबर हो नतला अक्टोबर अराउंड $42 बिलियन इंपोर्ट होतला प्रॉब्लम थला एति एथरो अक्टोबर इंपोर्ट बढ़ी जाय $76 बिलियन प्लस टैरिफ आ एमिते नो के स्मार्टफोन देखो हमरो एथरो कोन मुझे रिपोर्ट पढतली हमरो जो हमरो सप्लाई जो थिला माने मेडिसिन सप्लाई सेटा भी कमी जाय यूएसए रे सप्लाई मेडिसिन ऊपर भी टैरिफ पड़िनी फार्मास्यूटिकल्स ऊपर टैरिफ पड़नी बट स्टिल माने मेडिसिन सप्लाई भी कमी जाय बुझी पाछो हायर द डॉलर इज बेटर फॉर अ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड माने डॉलर रिजर्व्स माने इफ यू हैव हायर डॉलर रिजर्व देन इट्स बेटर फॉर द कंट्री बुझी पाछो तापरे है ना देखो तापर कोन देला costlier gold purchases driving imports to a record $76 billion also weighed on the rupee बुझी पाछो costlier गोटे कोन लाकी gold purchases बेसी हे जतला तापर आ गोटे कथा लागी absence of intervention by the RBI in the forex market देखो एटी कोन होची RBI has consistently maintained that has interventions in the forex market aimed at curbing excessive volatility higher than the targeting any specific exchange rate RBI sold around देखो एबे कोन हिचे छ जेतोला डॉलर रेट 88.80 थिला आरबीआई सेतोला $7.91 बिकी देथिला सेतोला बुझी पार $7.9 मु कोनी जेतोला माने देखो जेतोला $1.85 होची 86 होची 87 होची 88 हां 0.80 हैला माने एठी कोन रुपी क्रैश करछ माने एठी डॉलर माने डॉलर डिमांड बढ़छ एला डॉलर डिमांड बढ़छ आरबीआई कोन करथला छ आरबीआई कोन करथला डॉलर डिमांड न बढ़िया पे से डॉलर सप्लाई बढ़े देला कोठी मार्केट रे बढ़े देला केते सप्लाई बढ़े देला 7.19 माने ता फॉरेक्स रिजर्व रु $7.1 बिलियन रो
फॉरेस्ट माने माने सप्लाई मार्केट रे बढ़े ताकि आउ रुपी डेप्रिशिएट न करू माने एतिकी बिलियन डॉलर से बढ़े चलना माने मार्केट रे पके देला आलू केजी दरकार 100 माने 100 केजी आलू दरकार मंडी रे तमे 200 केजी बढ़े देला तो आलू रो डिमांड कमी जिवो ना माने आलू रो प्राइस कमी जिवो ना सेति पई डॉलर रे डिमांड कमेबा पई से मार्केट रे एतिकी डॉलर से स्पेंड कर देतले टिल 88.80 तथापि माने माने करेंसी एते क्रैश करी गला लास्ट को 10 लास्ट 10 डेज भितरे 90 टच हे गला बुझी पाछ तापरे आउ आरबीआई इंटरवेन करलानी आरबीआई इंटरवेन करलानी आपरे आरबीआई जमा इंटरवेन करलानी से जानि से इंटरवेन करले भी दे विल लूजिंग डॉलर्स बट करेंसी स्टेबल होबनी ए जिनसटा बुझी पाछ once it breached this level 21 traders started covering short positives leading to the currency देखो तमे एटा गोटे जिंस तुम कहबा देला जेतले ए जो करेंसी हे जाय ना एटी कोन करबे ना ट्रेडर्स माने कोन करबे ना तांगर पोजीशन शॉर्ट कर देबे शॉर्ट माने बुझी पार एनीबॉडी नोस द कांसेप्ट ऑफ शॉर्ट पोजीशन हां डिमांड पुट कि जानि छ शॉर्ट माने कोन करन दिया छ बुझी पार देखो एटा जदी माने एटा जदी करेंसी रे वैल्यू हमरे कमी जिवो ना 85 86 सपोज तमे फॉरेक्स मार्केट रु अराउंड तमे $1000 आनिथला ठीक अछि $1000 आनिथलो माने बोरो करछ मु शॉर्ट कथा कहू बोरो करछ यू आर बोरोड अराउंड $1000 ओके सेतले डॉलर रे वैल्यू थिला सपोज 10 रुपीस थिला सेतो मु एग्जांपल कहू ता माने तमे केते रुपी दब तमे ठीक अछि 10 रुपीस हो ता माने तमे केते टका पाइलो 10,000 पाइलो तमे मार्केट रो बोरो करले केते $1000 डॉलर वैल्यू थिला 10 रुपीस तमे मार्केट रो पाइलो केले 10,000 पाइलो ठीक अछि सपोज डॉलर वैल्यू बढ़ी गला केते 20 बढ़ी गला ठीक अछि माने रुपी क्रैश होछि ता माने केते दो एबे केते वैल्यू हो गला 20,000 हे गला राइट ता माने तुमको जेहेतु तुम एति बोरो करिछो तुम सही $1000 तुम आगु को फेरेबो ना मार्केट को तुम केते फेरेबो 20,000 फेरेबो ताले तुमरे माइनस केते होछि 10,000 रुपीस र घाटा होछि 10,000 रुपीस र घाटा होछि आई होप यू आर गेटिंग एटा शॉर्ट कोन जदी एटा 10 नो एटा 20 नो हे कि एटा 5 हेई थांता बुझी पाछ ता माने तमे मार्केट को केते माने तमे 1000 into 5 ता माने तुम 5,000 मार्केट को फेरे थांतो तुम बोरो केते करथलो 10,000 बोरो करथलो आउ हमर करेंसी एप्रिशिएट हैला बिली 5,000 ता माने तो मार्केट को 5,000 फेरे थांतो माने 5,000 प्रॉफिट हे थांता बुझी पाछ एटा हेला 5,000 प्रॉफिट हे थांता ड्यू टू करेंसी क्रैश करछे 20 हे गला सेति पई तमे 20,000 फेरे तमे बोरो करथलो 10,000 तुम फेरेलो केते 20,000 बुझी पाछ सेति पई एटी इन्वेस्टर्स रे लॉस हे गला बुझी पाछ ए जिनसरा से कहै छै once it breached the level of November 21 traders started covering short positions बुझी पाछो they started selling they से जानि छी आउ मार्केट रिकवरी होबनी आउ जति लॉस होजे बे सही जिबा आउ बेसी लॉस सही बनी सेति पई शॉर्ट कर देले एबे छोटा बुझौतले डॉलर रेट थिला 10 थिला 20 हे गेला से जानि छथि 10,000 सेमिति भी लॉस हो 10,000 बोरो करथले 20,000 हे गेला तो शॉर्ट कर देले कोन 10,000 लॉस होचे जदे एप्रिशिएट करथांदा से 5,000 टाइम प्रॉफिट पाइथांदा तो एडा भी माने बुझी पाछ इन्वेस्टर्स रो कॉन्फिडेंस वी आर लूजिंग द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस ए जिनसडा से कोच तापर है ना इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी बुझी पाछ डोमेस्टिक क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है ना इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल एंड पेज फॉर $18 देखो हमरो पर मंथ हारारी है ना 120 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करूछ 120 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करूछ पर मंथ बुझी पाछ जदि बैरल रेट थबो 65 बिलियन $65 थबो बैरल रेट जो 65 थबो बुझी पाछ सपोज किछि उतल पुतल हे गेला बुझी पाछ 75 हे गेला तो डॉलर गला ना इंडिया रो डॉलर गला ना तो क्रूड ऑयल जे हमको तो एतिक तो किनिया पड़िबो 65 दोथलो एबे 75 दो बुझी पाछ तो हमें सेति पई हमरो एक्चुअली कोन 85% ऑफ क्रूड ऑयल ना हमें बाहर आनुछु सेति पई वी आर टू मच फोकस्ड ऑन क्रूड ऑयल सेति पई हमें कोन करि परिबो आई मीन वी कांट हम पखरे किछ चांस नै सेति पई हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जाउछु या हमरो एथेनॉल ब्लेंडिंग को जाउछु बुझी पाछो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कमेबार अछि
तो मु लास्ट टाइम रिपोर्ट पढ़ुली आमे अराउंड $120 बिलियन खर्च कर $120 बिलियन 2024 फाइनेंशियल ईयर रे आमे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर $124 बिलियन बुझी पारछ एटा कि छोटा अमाउंट हमरो हमर रिजर्व हला $700 बिलियन बुझी पारछ 124 बाई 700 कर दियो केते परसेंटेज होछि बुझी पारछ तो एटी कोन होछि this persistent need for dollars to buy oil quietly adds to the downward pressure on the market ता माने कोन हमको डॉलर दरकार रुपी फुल डिप्रिशिएट करिवो क्रूड ऑयल इंपोर्ट प्लेस अ वाइटल रोल इंडियन इकोनॉमी सो 2070 कार्बन एमिशन फ्री बाय गवर्नमेंट कार्बन हे पारे माने जदी क्रूड ऑयल जदी न कमेबे देन कोन होबो सर 2070 देखिए हम बच सब कि नहीं सेटा भी होटा ये है ना तापर impact on Indian economy consumer level impact imported goods whether electricity raw materials or even some medicines may become more expensive बुझी पारछो देखो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पाई कोन हमें चिप्स इंपोर्ट करछु ना चिप्स इंपोर्ट करछु रॉ मटेरियल इंपोर्ट करछु और डॉलर रेट जदी माने बढ़िबो तो ऑब्वियसली गुड्स भी इंपैक्ट करिवो स्मार्टफोन आस्तला 8000 टंका आस्तला एबे आसीबो 16000 रुपीस आसीबो बुझी पारछो कहीं डॉलर रेट माने हमर डॉलर रेट बढ़ुची एंड मार्केट गेटिंग अप्रिशिएट माने रुपीस आर गेटिंग हां केडी सर हेलो हेलो तो ओवर टाइम हायर इंपोर्ट कॉस्ट ओके ठीक अछि देखो तो हायर तो कोन हो जदि आमे सब जिंस जदि आनु बाहर देन ऑब्वियसली इंपोर्ट देखो आकु कोन दे ना इंपोर्ट इन्फ्लेशन कोन इंपोर्ट इन्फ्लेशन हला जदि आमे सब जिंस बाहर आनु ना ऑब्वियसली गुड्स रेट तो बढ़ी जो बट पीसीआई नॉट ग्रोइंग दिस रेशियो वेयर प्राइस ऑफ गुड्स इज इंक्रीजिंग है ना पीसीआई ओके पर कैपिटा इनकम कथा कुछ राइट नॉट ग्रोइंग इन द रेशियो वेयर प्राइस ऑफ गुड्स इज इंक्रीज पर कैपिटा इनकम देखो पर कैपिटा इनकम तेबे बढ़िबो जेतले जीडीपी बढ़िबो बुझी परछो जेतले जीडीपी बढ़िबो देखो कोन कहबी तुम देखो एबे देखो आमे बे ग्रोइंग इकोनॉमी स्टेज रो छ ठीक अछि जदि हमें जीडीपी बढ़िबो ना इफ आवर जीडीपी बढ़िबो ना इनकम इनइक्वालिटी बढ़िबो किंतु गोटे टाइम परे इनकम इनइक्वालिटी कमी जिवो बुझी परछो देखो एडा जदि इनकम इनइक्वालिटी हले एडा जीडीपी होछला जीडीपी होछि ठीक अछि तो जीडीपी बढ़िला जीडीपी बढ़ला गोटे स्टेज रे माने एडा हाईएस्ट लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी तापरे जीडीपी बढ़िबो इनकम इनइक्वालिटी कमिबो एडा हला डेवलपिंग इकोनॉमी रो ट्रेंड एटा डेवलपिंग इकोनॉमी रो ट्रेंड एटा बुझी परछो आगु कमिबो केमिथि हेले भी कमिबो माने देखो गवर्नमेंट भी तारो माने बहुत सारा स्टेप्स नउची हला एमिति नै कि नउची बुझी पर गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग मोर इन डिफेंस इंस्टेड ऑफ आर एंड डी because am R&D सेमती stability नाही देखो गोटे जिंस लागी the country which reached more in fast attempt ना तापे किछ प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम वाला कि द पैसा इज वेरी इंपोर्टेंट आमर गोटे ट्रेंड थिला कि हमें सब्सिडी दउछ चलछ सब्सिडी कोन एबे तो लाडली बहना योजना सुभद्रा योजना सब चली छे एडा आगुरु भी चलथला किंतु एते लेवल रे चने एबे कोन कि एवरी माने देखो सपोज गवर्नमेंट इज रूलिंग हला जदी गवर्नमेंट रूल करूछ ऑपोजिशन कोन कहबो नाही हमें आमे आसिले तुमको एती जिंस फ्री कर दो तो गवर्नमेंट विल से दैट ओके आमे भी कर दो तो एटी कोन जे कंपटीशन होचे राहुल गांधी सेड दैट आमे खटाखट स्कीम आनी केसो तो गवर्नमेंट कोन आला हम लाडली बना स्कीम आनी केसो once you have promised then you have to give them right once you have promised सुभद्रा योजना many beneficiaries got ठीक हो जे but actual beneficiaries केते होबा कथा सुभद्रा योजना every person has got it माने सब जियो पाइछन बट ता भितरे डिजर्विंग केते अछन सेडा तमे देखो 10000 crore फॉर सुभद्रा योजना इज
ए ह्यूज थिंग मोर देन $1 बिलियन हे गेलानी $1.2 बिलियन सेटा बुझी पाछो ता भितर गोटे नुआ डिपार्टमेंट क्रिएट हे हाईएस्ट जीडीपी इन सर्विस सेक्टर बट 45% मैन हाँ गोटे जिनस लगे सर्विस सेक्टर ही हमको बचाऊँ कह गले सर्विस सेक्टर आम जो आईटी कंपनीज अच्छा से जो सैलरी पाँच सपोज सपोज इनफोसिस कमाऊँ बुझी पार्छ सपोज इनफोसिस they are earning right they are earning from the US company the US जो कंपनी माने से माने कौन पठेबे से माने डॉलर पठेबे राइट से माने डॉलर पठेले आंकु सैलरी मिलिबो बुझी पाछो दैट इज देयर सैलरी सो सर्विस सेक्टर इज डूइंग गुड बट सेट इज मैन पावर टी कम अछि ए जिनसटा कुछ बुझी पाछो कंपनीज दैट रिलाई हेवीली ऑन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स विल फील मार्जिन प्रेशर foreign travelers now cost because of converting rupees to dollar is costly around weak currency ठीक अछि ना देखो फॉरेन ट्रैवलिंग टे कमी जिवो जदी तमरा $1 जदी 90 रुपीस होछि ना आ तमे यूएस जिवो I would have preferred when $1 is 80 rupees मु 90 रुपीस देकरी मु डॉलर खर्च करी जिवि मो फोन मोर सेट केते खर्च $1 लाख पाखा भी खर्च हो जिवो तो मु आउरी बेसी रुपीस देबी माने $90 लाख कम हलानी तो फॉरेन ट्रैवलिंग मो पे बहुत कॉस्टली हे जिवो इफ रुपी हैज बीन डेप्रिशिएटेड ए जिनसर से कोच तापर इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी कोन एक्सपोर्टर्स आईटी सर्विसेज पे बेस्ट अछि माने जदी हमरो करेंसी डेप्रिशिएट करछि ना आईटी सर्विसेज फायदा उठेबे काहे आईटी सर्विसेज सैलरी जोटा आछि ना यूएस रु यो कोट आछु इंडिया को जोटा आछु ना सेटा कोन डॉलर हिसाब रे आछु डॉलर एबे केते आगुरे 80 थिला एबे डॉलर 90 हे गेला माने 90 रुपीस माने 10 रुपीस एक्स्ट्रा पाइबे के पाइबे आईटी वाला पाइबे बुझी पारतो आईटी वाला 10 रुपीस एक्स्ट्रा पाइबे तो आईटी सर्विसेज आर गेटिंग माने आईटी सर्विस रो भलो अछि तापर टेक्सटाइल्स फार्मा काहे एमान सब कोन एक्सपोर्ट करन फार्मा भी एक्सपोर्ट करे तो रेवेन्यू इन यूएसडी कॉस्ट इन आईएनआर माने कोन आंकर रेवेन्यू बढ़ी जिवो बुझी पारछ आंकर रेवेन्यू बढ़ी जिवो ए जिनसर से कहूछ तापर why it is not a crisis why it is not a crisis हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व कहीं देखो हमर एटा देखो एटा 91 भले क्राइसिस काई कहतनी काहे कि 91 रे हमर फॉरेन रिजर्व नथिला अराउंड हार्डली 10 to 15 बिलियन डॉलर थिला किंतु एबे हम पाखरे फॉरेन रिजर्व्स केते होचे $700 बिलियन अछि तो इट इज सफिशिएंट फॉर 1 ईयर इंपोर्ट पे एटा सफिशिएंट अछि सफिशिएंट 1 ईयर तक किछि प्रॉब्लम नै हमर हमें पैसा भी दे परियो इंपोर्ट भी करि परियो ठीक अछि तो हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व अछि दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्राइसिस तापर कोन स्टेबल बैंकिंग सेक्टर काहे कि एबे एनपीए कमी जाय छै एनपीए हमर कमी जाय छै तो बैंकिंग सेक्टर पे एते प्रेशर नै बुझी पाछो मैक्रो मॉडरेट एक्सट्रीम डेप्ट लो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी देखो जदी तमर एनपीए थांदा ना देन यू कुड हैव फेस्ड अ सेटबैक बट जेहेतु एनपीए नाही देन बुझी पाछो तो इट इज मैनेजेबल है ना तापर आउ हमर टोटल एक्सटर्नल डेप्ट केते 736.3 बिलियन डॉलर टोटल एक्सटर्नल डेप्ट बुझी पार इट इज अराउंड कितना 19% 90 हमर देखो हमर जीडीपी रेशियो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो हला 19% बुझी पार 19% यूएसआर केते जानछो यूएसआर एटा 120% बुझी पार तो हमको केते एति दबार अछि 736 बट एटा हम टाइम टू टाइम रे पेमेंट करे एमिति नै कि मतलब हमको एबे दबार अछि तो दिस इज गुड डेप्ट टू रेशियो हमरो बहुत कम अछि ना 19% दैट इज मैनेजेबल बुझा तापर रुपीस एडजस्टिंग नॉट कोलैप्सिंग माने एडा आरबीआई कहबा कथा रुपी टिके एडजस्ट करू से कोलैप्स करूनी एडा आरबीआई कहबा कथा एडा मु कहूनी ठीक अछि बिकॉज़ ऑफ द अनसर्टेनिटी इश्यूज ग्लूमिंग इन द फॉरेन मार्केट ए जिनसटा से कहूछ है ना तो रिस्क काहे के अछि इफ द ये देखो स्टिल रिस्क व्हाई दिस रिस्क स्टिल परसिस्ट काहे कि यूएस इंडिया ट्रेड डील जदी न हबो जदी यूएस इंडिया ट्रेड डील जदी न हबो ताले कोन हबो हमरो व्हाट लागि जिवो काहे कि ऑब्वियसली वी यूज टू अर्न डॉलर्स फ्रॉम यूएस ना जदी ट्रेड डील हबनी आ 50% टैरिफ रहइबो बुझी पारछो हमरो कोन ट्रेड सरप्लस था यूएस संगे बुझी पारछो यूएस संगे अराउंड $50 बिलियन ट्रेड सरप्लस था $50 बिलियन ट्रेड सरप्लस था आउट ट्रेड डील जदी हबो ना ए डॉलर आसीबोनी आगु को एबसे 8.2 जीडीपी अछि तमे जे थर्ड क्वार्टर रो तमे रिजल्ट देखले तमे माने जणा पडिबो कि हम केते पानी रहछु बुझी पाछो तो इन्वेस्टर आउटफ्लोस मे नॉट अबेट माने आउटफ्लो हे जिवो मु जोडा कहतले एफपीआई वाला इफ ऑयल प्राइसेस राइज शार्पली देन इट कुड वर्सन द इंपोर्ट बिल बुझी पारछो
बुझिपार ऑयल प्राइसेस राइसेस शार्पली बुझिपार देखो माने ऑब्वियसली जब तुम इंपोर्ट तेल जब इंपोर्ट करियो बेसी इंपोर्ट करिवो आ डॉलर रेट जो 90 हे जिवो 80 आगे 80 रे इंपोर्ट करथलो एबे 90 रे इंपोर्ट करिवो माने बुझिपार से बर्डन टा कोड जिवो कंज्यूमर ऊपर को जिवो से जिंस इफ द आरबीआई चूजेस टू डिफेंड मोर एग्रेसिवली इट माइट डिप्लीट रिजर्व जदी आरबीआई जदी इंटरवेन करियो नाइ मु डॉलर माने मार्केट रे डॉलर सेल करबी ता माने कोन हमर फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हे जिवो बुझिपारछो हमें आरबीआई केते सेल करथला आरबीआई केते सेल करथला एट अछि ना देथिल ना दिस वन ठीक अछि एनीवेज आरबीआई अराउंड $16 बिलियन सेल करथला माने अछि आरबीआई $16 बिलियन कोड गला यार ठीक अछि आरबीआई केते $16 बिलियन सेल करथला टिल 88 बुझि पारछो आउ से सेल करिवोनी जदि इफ इट चूजेस टू डिफेंड मोर एग्रेसिव जदि आउरी सेल करिवो माने कोन फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हे जिवो बुझि पार ए जिंसटा से को इट माइट डिप्लीट रिजर्व्स और लिमिट्स इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द फ्यूचर ए जिंसटा को तो एटा थिला मेन जिंस आउटे कथा कोन जाओ एटा मु कोड नेथिले एटा RBI on the other hand appears to be favoring a gradual depreciation to keep exports competitive in the wake of 50% tariff देखो एबे जो जिंसटा कहबा को जाउची देखो RBI कोन करछ एबे हमरो डॉलर रेट 85 रो 90 हे गलानी हैना आरबीआई डिफेंडेड टिल 88 तापरे आरबीआई डिफेंड करूनी एबे माने एक्सपोर्ट हमरो डॉलर रेट कमी गला 88 पर आरबीआई डिफेंड करलानी काई जानछो हमरो यूएस रे टैरिफ पके जे 50% टैरिफ पके छला आरबीआई चाहूची हमर जो एक्सपोर्टर्स अछंती ना एटलीस्ट से माने किछि स्पेस तो पांदु जेहेतु हमर एक्सपोर्टर्स यूएस को एक्सपोर्ट करि परिबेनी तो दे नीड अदर मार्केट माने अफ्रीका हे गला लैटिन अमेरिका हे गला साउथ अमेरिका हे गला एनी अदर कंट्री वियतनाम हे गला बुझि पारछो सपोज देखो गोटे शर्ट रो दाम होची 500 रुपीस हला 500 रुपीस शर्ट रो दाम होची हला डॉलर रेट अछि 85 हला 85 रुपीस डॉलर रेट अछि ठीक अछि तले जेतले यूएस मार्केट को जिवो सेट केते अछि 500 बाय 85 राइट हारारी 5.88 डॉलर रुपीस हबो यूएस मार्केट रे सेटा 5.88 डॉलर हबो तार रेट हबो आउ ता भितरे 50% टैरिफ पडिछि 50% टैरिफ पडिछि बुझि पार ता माने 50% ऑफ केते 2.99 मु 3 नउछि ता माने 8.88 डॉलर पडिबो एक्चुअल रेट यूएस रे एडा 8.88 डॉलर पडिबो बुझि पारे गोटे शर्ट रो दाम 8.88 डॉलर पडिबो हमरो आरबीआई कोन कोछ while a depreciation currency may provide some support to exporters many say that RBI decision to stay away from intervention माने बुझि पारो जेतो से 85 थिला 85 परे से इंटरवेंशन मु एग्जांपल दोछि 88 पर सिना कलानी मु कहूछि सपोज यूएस माने आरबीआई 85 परे इंटरवेंशन कलानी तो सेति पई हमरो यूएस रे हम शर्ट रे 8.88 सपोज 90 हे गेला डॉलर हेला 90 हे गेला बुझि पारछो डॉलर 90 हे गेला ता माने एबे से डॉलर आमे कोड एक्सपोर्ट करे ए अफ्रीका लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका करिया 90 हेला काहे कि आउ आरबीआई इंटरवेन कलानी तो ता माने हेला 500 बाय 90 500 बाय 90 केते होछ अराउंड 5.55 डॉलर बुझि पारछो 85.88 डॉलर थिला एबे हम अलगा मार्केट को एक्सपोर्ट करला बेल को 5.55 डॉलर हे जो माने हमरो कोन हबो मार्क हमर जो प्राइस हला कॉम्पिटिटिव हे जो कमी गला बुझि पारछो एठु 5.88 थिला 8.88 थिला केते हला 5.55 हेला मार्क माने प्राइस कमी गला सेति पई आरबीआई इंटरवेन कलानी let the rupee depreciate आरबीआई इंटरवेन कलानी बुझि पारछो 88 पर आरबीआई इंटर काहे कि एटलीस्ट हमर एक्सपोर्टर को कॉम्पिटिटिव मार्केट दरकार बुझि पारछो तो एटा को 90 गला तो 5.55 डॉलर हेगला तो इट विल कम्पीट विथ अदर नेशन लाइक बांग्लादेश पाकिस्तान तांको गुड संगे से कोड कम्पीट करिवे अफ्रीका रे कम्पीट करिवे बुझि पारछो तो दैट्स व्हाई आरबीआई never intervened while a depreciation currency may provide some support कोन एटा काहे कि 5.55 5.88 थिला 5.55 हेगला बुझि पारछो सेति पई आरबीआई आउ इंटरवेन कलानी बुझि पारछो is a wise one it is not something they can artificially control if they do they will also end up dwindling the reserves माने जदी
आकु माने जदि ताकु आरबीआई 85 जगह जदि इंटरवेन करिकि ताकु 84 करि थांता या 80 कर दे थांता माने बुझलो 500 बाय 80 केते होछ अराउंड 6 पखा बाकी $6 आम $6 रेट टा $6 बिकी थांता कोडी ए अफ्रीका रे बिकी थांता बुझि पारछो $6 जदि आरबीआई इंटरवेन कर थांता रुपी के जदि स्ट्रांग कर थांता तले माने एक्सपोर्टर बिकी पर थांते एक्सपोर्टर हालत सेमिति भी खराब अछि बुझि पारे एक्सपोर्टर हालत सेमिति भी खराब अछि सेति आरबीआई इंटरवेन कलानी 88 पर से जाऊ से करेंसी जाऊ ताकि हमर एक्सपोर्टर टी कॉम्पिटिटिव हे पारे मार्केट रे जदि इंटरवेन करथांता ए हालत हेतांता 84 पाखा रख दे थांते $6 बिकथांते तो हमर सेल हे न थांता आई होप आई एम मेकिंग एनी सेंस विथ यू बुझि पारछ तो मु कोन कहूची टिके टफ थिला आई ट्राइड माने भाबुतले ट्राई करबी ना नाही जेहेतु एटा इकोनॉमी पार्ट था थिला ना जेहेतु एटा मु करंट अफेयर्स नउची सो आई ट्राइड माय बेस्ट सो दैट टिके तुमको माने टिके रिहाती पाई जो आई होप बुझी पारछ तो टिके वीडियो टिके आगुरु देखि देबो है ना एवरीबॉडी वाज आई मीन टिके लेट हे जातला थरो तो टिके आगुरु देखि देले हे जबो बुझी पारछ तो ए सब कटिंग उडा ना इट इज दिस आर वेरी इंपोर्टेंट कटिंग्स है ना ओके ठीक है व्हाई आरबीआई इज नॉट इंटरवेनिंग आर सब दे देची राइट एक क्वेश्चन एडो करो है ना विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स है ना with reference to the Indian economy, consider the following elements. If the inflation is too high, eta PYQ thila. If the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. If the inflation is too high, RBI will buy government securities. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Tapare, if interest rates in the US or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. कौन हम ठीक है टफ अच्छे बट डिटेल ऑल द अबव हला देखो आ भितर गोटे जिनस पाई गले यू कैन आंसर द क्वेश्चन है ना इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे ना कौन हम जदि इन्फ्लेशन जदि हाई अच्छी इन्फ्लेशन जदि हाई अच्छी माने रुपी पैसा बहुत हाई अच्छी राइट आरबीआई कौन करिवो से पैसा को बाई करिवो ना सेल थोड़ी ना करिवो राइट तो आरबीआई इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई केमिति करिवो पैसा देके बाई करिवो ना बुझी पार पैसा देके बाई करिवो सो दिस इज इट इज लाइकली टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बुझी पार सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सपोज एडाला 100 टंका राइट तो सी कौन करिवे बैंक रु कहबे ए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीटा तमे नियो ए सिक्योरिटी तमे नियो हमको 100 टंका दियो बुझी पारछो इन्फ्लेशन को कूल करिया पे बुझी पारछो दे विल डू ए सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर नॉट बाय तो दिस इज ऑलमोस्ट ए रॉन्ग ऑप्शन एडा रॉन्ग तो 81 अछि एडा भी रॉन्ग एडा 1 तो आंसर विल बी 2 and 3 thank you if the rupee is rapidly depreciating RBI is likely to sell dollars rupee is rapidly RBI likely to sell dollars obviously right yeah obviously जदि रुपी डेप्रिशिएट करछे आरबीआई कोन करिवो माने कोन $1 80 हे गेला 90 हे गेला आरबीआई कोन करिवो डॉलर सेल करिवो कोडी मार्केट रे डॉलर को सेल करी मार्केट रे भर्ती कर दो बुझी पर से जिंसटा से कहछि तापरे इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन वेयर टू फॉल then it's likely to induce RBI to buy dollars एटा कोन जानछो जदि इंटरेस्ट रेट ऑफ यूरोप अमेरिका जदि फॉल करिवो ना हमर एटी रुपी एप्रिशिएट हबो काहे कि एटी डॉलर वीक हबो थर्ड ता डॉलर वीक हबो काहे कि रुपी एप्रिशिएट करिवो काहे कि एठु इन्वेस्टर्स कोन करिवे इंडिया को पळे आसीबे काहे कि सेटी इंटरेस्ट रेट कम अछि तो इन्वेस्टर्स वांट रुपी एट दैट टाइम बुझी पारो एट सेटी माने यूरोप अमेरिका रे कोन अछि इंटरेस्ट रेट कमी जाउछे माने सेटी बेसी कोन बेसी प्रॉफिट मिलिबो सेति पई से माने कोन करिवे से पैसा नै करी इंडिया रे इन्वेस्ट करिवे राइट सेति कोन रुपी रो डिमांड बढ़िबो बुझी पारछो रुपी रो डिमांड बढ़िबो कोन हो $1 85 रु 84 हे जिवो 83 हे जिवो ताले एक्सपोर्टर पे दिक्कत हे जिवो सी कोन करिवो आरबीआई कोन करे डॉलर किनिया स्टार्ट कर दबो
जेमती डॉलर किनिया स्टार्ट कर दो 85 रु 86 हे जिवो 87 हे जिवो सिंपल कथा तुम टिके एनालाइज करिवो ए क्वेश्चन हला जेहेतु आ भीतर आंसर मिली गला सो इट विल बी 2 and 3 जस्ट एनालाइज माने मु जहा कोइ छी टिके एनालाइज करो हला राइट आई होप इट इज क्लियर ना टिके टफ थिला मु बुझी परछ I can see I can't see your face but I can imagine that you're having some trouble na I hope any problem ठीक है इमेजिन करो माने देखो इकोनॉमिक्स ना इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी इजी सब्जेक्ट कोन बहुत सारा जिंस पढ़िबा को था राइट बहुत जिंस पढ़िले जांकी तुम माने यू विल कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन इकोनॉमिक्स राइट ठीक है तमे कोन करिवो तमे निजे पाखरे बसिबो खाता बहिटा धरिबो तमे डॉलर रेट बढ़िबो डॉलर रेट कमिबो ए जिंसटा देखिबो आ गोडा लागी जदि तुमको जानिबार अछि देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू चैट जीपीटी जहां डाउट अछि एआई को यूज करो ठीक अछि इट विल क्लियर देन मु तो अच्छी सेमिति भी अच्छी जदि टूल्स आर देयर ना यू कैन क्लियर योर डाउट्स बुझी पाछ डाउट जदि क्लियर हो देन डाउट जदि होउछ ना दैट इज गुड राइट तापर तुम आर्टिकल्स पढ़ो माने माने जहां भी सब डेटा अछि सब जिंस पढ़ो ताल जे तुम पाई जीवो यू विल कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग है ना एडा गोटे थिला एडा भी यूपीएससी क्वेश्चन थिला कंसीडर द फॉलोइंग foreign currency convertible bonds, foreign institutional investment with certain conditions, global depository receipts, non-resident external deposits. Which of the above can be induced in foreign direct investments? Kona? Which of the following can be included in FDI? Okay. Kona? Koda abo? It's the easy question. This is an easy question, right? Foreign currency convertible bonds. FII with certain conditions, okay. GDR, non-resident external deposits. It's an easy question actually. Either gote option eliminate hegla sob ejo. कौन एटा देखो फॉरेन करेंसी एफसीसीबी हैला एफसीसीबी कौन फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कौन ओके इट्स अ वन फॉर्म ऑफ एफडीआई बुझी पारछो इट्स अनदर फॉर्म ऑफ एफडीआई तमे कौन करलो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करलो केमिति तुम बुझेबी कि मुसिया भाउछ ठीक अछि देखो तुम से सपोज गोटे कंपनी रे तुम 10 सपोज 11% इन्वेस्ट करथिलो 11% तुम इन्वेस्ट करथिलो ठीक अछि राइट तुम गोटे कंपनी रे 11% इन्वेस्ट करथिलो थ्रू एफसीसीबी है ना राइट सेटा ऑटोमेटिकली कोन हे जिवो अकॉर्डिंग टू आरबीआई एंड डीपीआई है ना सेटा हे जिवो कोन हे जिवो एफडीआई हे जिवो बुझी पारछो से जिंसटा से कहूछ FII is another form of FDI माने देखो सपोज तुम कंपनी इन्वेस्ट कर लो अराउंड गोटे स्टार्टअप रे इन्वेस्ट कर लो हला जोटा कि लिस्टेड भी नहीं जोटा लिस्टेड भी नहीं सेठी तुम 11% इन्वेस्ट कर दलो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम FDI गोटे स्टार्टअप रे तुम इन्वेस्ट कर दलो जोटा कि लिस्टेड नहीं कोडी माने स्टॉक एक्सचेंज रे तुम ऑटोमेटिकली सेट FDI हे जिवो तापर GDR माने कोन आइछ सपोज मते आई एम ए पर्सन इन यूएस मते इन्फोसिस रो शेयर किनिबार अछि हला इन्फोसिस रो शेयर किने देन इन्फोसिस विल स्टार्ट सेलिंग इट्स शेयर्स इन यूएस मार्केट रे ताले मु इंडिया को नो आसी कि मु यूएस मार्केट रे मु इन्फोसिस रो शेयर किनि परियो ताको कोनते GDR if Infosys start listing its shares in US market, then US person can buy its share in from the US market. सेटा कोनती माने सादा भाषा रे पूछ सेटा कोनती GDR बुझी पारछो तो नॉन एडा भी काइंड ऑफ एफडीआई गेला नॉन रेजिडेंट एक्सटेंशनल डिपॉजिट माने कोन एनआरआई जेतलो एनआरआई जेतलो ता पैसा इंडियन बैंक रे डिपॉजिट करूछ आकु कोनती नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल डिपॉजिट
एडा एडा तो एफडीआई तो नुह एडा हला जस्ट स्पेंडिंग पई थाए बुझी पारछ तो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली बाकी तीनटा को 1 2 3 अछि राइट ठीक है क्वेश्चन पेचीदा थिला है ना जेतु ठीक है पेचीदा थिला सो आई थॉट ऑफ डूइंग दैट आई होप आई मीन ठीक अछि तो राइट यदि किसी डाउट हो मु काली आउथरे बुझे देबी ए क्वेश्चन टा यदि किसी डाउट हो है ना टाइम इज देयर इज आई एम लैगिंग टाइम तो नेक्स्ट क्लासेस भी होबार अछि सो राइट तो आमे सेशन को वाइंड अप कर दोछ ओके विल सी डे आफ्टर टुमारो विल सी इन द डे आफ्टर टुमारो माने डे आफ्टर टुमारो आई विल कम टू द न्यूक्लियर पार्ट को नेकी किसी क्वेश्चंस होने वाले माने इंडिया रे न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज हो जाय सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियर पॉलिसी नेक्स्ट क्लास ठीक अछि तो टिल देन ठीक है वीडियो देखि दियो इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस है ना करंट अफेयर्स रिलेटेड पढौछ ना तो लेट मी नो फ्रॉम माय ऑलरेडी मु तुम व्हाट्सएप नंबर देछि जोटा कि इंस्टीट्यूट रो यू कैन कनेक्ट मी देयर ओनली ठीक अछि आई होप मैंने टिके कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट थिला बट इट्स ओके कहीं जेहेतु हम सिविल सर्विस पढ़छो ना टिके जानी था इवन 70 to 80% ऑफ कॉन्सेप्ट ना इट कैन क्लियर द क्वेश्चन बुझी पारछो टिके जानिथिले भी तमे गेस करिकि तमे क्वेश्चन को तमे निजो आंसर कन्वर्ट करि परिबो माने ओपीएससी कथा कहूछ बुझी पार एटी टिके बेसी हाई लेवल क्वेश्चन था एटलीस्ट 70 to 80% कॉन्सेप्ट जानो यू विल क्लियर इट ठीक अछि एनीवेज we'll meet you in the next session move 6 minutes back Raj. Okay you are in 6 minutes back anyways I mean मते भी टिके लागे लागे I mean it was too heavy हेगला मु इकोनॉमी बेसी पढ़ाई नहीं because economy is very heavy subject right I mean जे भी इकोनॉमी पढ़ाती I have massive respect for them right ठीक अछि तो पढ़ा पढ़ी करो we'll meet in the next session ठीक अछि have a good day